کھوتے غالب کمال پر کتابیں رکھ دینے سے غالب کمال اسکالر نہیں بن جاتا. یہی میرا آج کا موضوع ہے، اور آج کے میسج میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایکس کرسچن تھا، یہ بھی اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ مسیحت کرسچینٹی جس فاؤنڈیشن پر قائم ہے یہ اس کو ہی نہیں جانتا. آج کا اس کا کلپ جو ہم سنیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ہوا یہ کہ کسی ایکس کیتھلک نے کال کی اور اس نے کہا کہ مجھے پریسٹ مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے وہ نہیں بتا سکے، سمجھا سکے، کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ میں بھی مسیح کی طرح خدا کی بیٹی ہوں. مجھ میں اور مسیح میں خدا کا بیٹا یا بیٹی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس بات پہ اس نے کہا پریسٹ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکا، اور اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے. تو اب اس نے غالب کمال کے ساتھ یہ ڈسکشن کی ہے، تو غالب کمال نے اس کو جو جواب دیا ہے آپ کو اندازہ ہوگا. آپ کو غالب کمال کے جواب میں اور اس پوری ڈسکشن میں آپ کو بدبو نظر آئے گی ذاکر نائک کی. جو ذاکر نائک کہتا ہے، جو حضرت محمد کہتے ہیں، جو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو وہ نظریہ نظر آئے گا ان دونوں کی ڈسکشن میں. خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کن معنوں میں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ان دونوں کی ڈسکشن سے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ دونوں جو اسلام کا نظریہ ہے اس پر اتفاق کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو ایک تو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جو فاؤنڈیشن ہے کرسچینٹی کی وہ اس بات پر قائم ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس سچائی میں، اس قدرت میں کیا حقیقت ہے، کیا اس کا مطلب ہے، کیا اس کے معنی ہے، وہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے. لیکن غالب کمال نے ان سب باتوں کو چھپایا انٹینشنلی، نظر انداز کیا انٹینشنلی، یا پھر جانتا ہی نہیں ہے اور وہ نظریہ دہرانے لگ پڑا جو ذاکر نائک بولتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اور پتہ چلے گا کہ یہ کبھی بھی کرسچن نہیں تھا. یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور کھوتے کے اوپر کتابیں رکھ دینے سے کھوتا اسکالر نہیں بن جاتا. یہ جتنی باتیں کرتا ہے یہ کوئی اس نے بی بی سی کی رپورٹ سے کاپی کی ہوتی ہیں یا کوئی کسی اور اخبار میں آرٹیکل پڑھا ہوتا ہے. خود کی اس کی کوئی سوچ نہیں، کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر، خود کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اگر سمجھ بوجھ ہوتی تو یہ اس بات کو خدا کے کلام کی روشنی میں بیان کرتا کہ مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے اور ہم کیسے خدا کے بچے اور بچیاں ہیں. تو آئیے وہ پہلے کلپ سنتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے بیان کو جاری رکھوں گا. کیونکہ کویسچن بڑا سمپل سا تھا کہ کیونکہ بائبل ٹیچنگز ہوتی تھی تو اس میں ایک ورڈ جو obviously سب سکھاتے رہتے ہیں، کرائسٹ از the son of God. تو میرا سوال تھا کہ ایک جگہ پہ کرائسٹ سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے آئی تھنک مدر میری آئی تھی اور انہوں نے بولا کہ بھائی ان کو باہر بلاؤ. تو جیسس سیڈ کہ بھائی whoever listens to the word of God is my brother and sister، مطلب ایسے کر کے. تو میں نے کوشچن کرا کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ he is the son of God اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے برادر سسٹرز ہیں، تو اس معاملے میں تو سارے بچے بن گئے خدا کے، تو how is he only the son of God؟ یہ میں کھڑے ہو کے بائبل اسٹڈی the only begotten son of God. تو میں نے کہا it doesn't make sense، کیونکہ if I'm the brother and sister تو I'm also the daughter of God. So I'm like Jesus. اور میں 11 سال کی تھی. So he chucked me out of the، نکال دیا انہوں نے، کہتے کہ اسے لے کر جو اس پہ شیطان حاوی ہے.
हाँ बिल्कुल, मैं बात समझ सकता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे ही होता है। और बेसिकली तो क्रिश्चियन ये समझते हैं कि सभी खुदा के बच्चे हैं, और वो ये समझते हैं कि दुनिया का हर बंदा खुदा का बेटा या बेटी है। बट जो थिंक के जी वो ये सुतोले वाले हैं तो वो सगा वाला है, असल में ये बात है सारी। यहां पर गालिब कमाल के लिए मैं ये कहूंगा कि गालिब कमाल को चाहिए था कि अगर ये वाकई क्रिश्चियन था तो इसे पता होना चाहिए था कि मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है और हम खुदा के बच्चे और बच्चियां क्यों हैं। अगर उस लड़की को प्रीस्ट नहीं समझा सका, बता सका, उसके माँ बाप नहीं समझा सके, तो इसको चाहिए था, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा स्कॉलर बना हुआ है कि ये क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा जानता है, तो इसने तो साबित कर दिया कि ये खोता है, और खोते के ऊपर किताबें रख देने से खोता स्कॉलर नहीं बन जाता। अब मेरी बहन, मैं आपसे मुखातिब हूं, इसमें ना तो उस प्रीस्ट की गलती है कि वो आपको समझा नहीं सका, उसकी वजह यह है कि आप समझना चाहती नहीं थी। इसमें आपकी माँ बाप की गलती भी नहीं है, क्योंकि जब माँ बाप आपको समझा रहे होंगे तब भी आप समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप अपने आप में होशियार और चालाक और स्मार्ट बने हुए हैं। अगर आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं तो आपने जिस खुदा के कलाम में से सवाल रेफरेंस के साथ उठाने की कोशिश की, उसी खुदा के कलाम में से आपने जवाब तलाश करने की क्यों नहीं कोशिश की? अगर आप ऐसा करती तो आपको पता चलता कि खुदा का कलाम बेटा या बेटी, बेटा होने का मतलब माशरे में भी, खुदा के कलाम में भी मुख्तलिफ मानों में, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के साथ आया है। बेटे का मतलब निकला हुआ भी होता है, वरासती बेटा भी होता है, किसी क्वालिटी और एट्रीब्यूट की वजह से भी किसी को बेटा कहा जाता है, लॉ की वजह से भी किसी को बेटा कहा जाता है, कानून, मोहब्बत के रिश्ते की वजह से, अमन, पीस की वजह से भी, किसी स्पिरिचुअलिटी के रिश्ते की वजह से भी उस्ताद शागिर्द को भी बेटा कहता है। बायोलॉजिकल बेटा भी होता है, बिगॉटन बेटा भी है, उसका एक अपना मुनफरिद अलग मतलब है, और बेटा या बच्चा आप अडॉप्ट भी करते हैं। तो अगर आप एक ही मतलब बनाना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने का, और अपने आप को भी उसी लेवल पे लेके आना चाह रहे हैं, तो आप उस बात को समझना नहीं चाह रहे कि आप कैसे खुदा की बेटी या बच्ची हैं और खुदावंद यीशु मसीह कैसे खुदा का बेटा है। बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पे इसको बयान करता है। अगर आप समझना नहीं चाहते तो इसमें किसी प्रीस्ट की और आपके माँ बाप की गलती नहीं है। हाँ, गालिब कमाल की गलती है जो अपने आप को एक्स क्रिश्चियन कहता है, झूठा। तो आप खुद भी बेटी हैं, बायोलॉजिकल बेटी हैं अपने माँ बाप की। आप, अगर आपकी शादी होगी तो आप बेटी बन जाएंगी अपनी सास और ससुर की, यानी डॉटर इन लॉ। अगर आपको कोई अडॉप्ट करता है तो आप अडॉप्टेड बेटी होंगी। अगर आपकी किसी खूबी की वजह से आपको कोई बेटी कह के पुकारता है, किसी और रिश्ते की वजह से किसी कोई बुजुर्ग आपको मोहब्बत और शफकत में आपको बेटी कहता है, आपकी मासी, चाची, दादी, ताई, ताया आपको बेटी कहता है, तो उसका मतलब और मानी और है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा बिल्कुल यूनिक, मुनफरिद, बिगॉटन, मोनोगेनस सन ऑफ गॉड कहा गया है। उसका मतलब, उसका महफूम, उसका मकसद, उसकी हशमत, उसकी बुजुर्गी, उसकी सदाकत आपको खुदा के कलाम में से ही मिलेगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप में बेटी होने में खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के बेटे का टाइटल, उसमें क्या फर्क है। हां, अगर आप खुदा के जलाल में एक होना चाहते हैं तो खुदा का कलाम आपको उसकी ऑफर देता है कि हम सब खुदा के जलाल में, खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्दस के जलाल में एक होंगे।
उसके लिए आपको फिर से खुदा और खुदा के बेटे और खुदा के रूह को कबूल करना होगा। जितनी मैं बातें कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अगर आप इतने स्मार्ट और अक्लमंद होते तो ये सब कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। अगर किसी रेफरेंस की जरूरत है तो वो मैं आपको दे सकता हूं। आप मेरी ये वीडियो वॉच करें क्योंकि आपकी सोच इस्लामी सोच है। खुदा के बेटे के तसव्वुर के बारे में गालिब कमाल की सोच जाकिर नाइक की सोच है। तो इसलिए आपको ये मेरी वीडियो वॉच करने की जरूरत है, जो मैं कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप ऊपर कमेंट पे पिन करके इसका लिंक छोड़ूंगा। इसमें मैंने खुदा के बेटे का मानी क्या है हकीकत में खुदा के कलाम की रोशनी में मैंने बयान किया हुआ है और ये जाकिर नाइक को जवाब दिया हुआ है, क्योंकि आप और गालिब कमाल दोनों इस बात को जाकिर नाइक के एंगल से समझ रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, अगर आप नहीं जानना चाहते, अपने आप में ही चालाक बनना चाहते हैं, सवाल तो करना चाहते हैं खुदा के कलाम में से, लेकिन जवाब आप खुदा के कलाम में से नहीं ढूंढना चाहते, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। तो आज हर क्रिश्चियन जो दूसरा सुन रहा है, मसीही बहन भाई, उनके लिए क्या सबक है कि हमें अपने ईमान के बारे में जानना जरूरी है कि हमारा ईमान क्या है और हम उस ईमान को क्यों रखते हैं। और फिर हमें हर वक्त तैयार होना चाहिए कि हम अपने उस ईमान को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकें, अकल के साथ, दानाई के साथ, हिकमत के साथ, लॉजिक के साथ, रेफरेंस के साथ। तो आज अगर कोई है जो हकीकत में जानना चाहता है खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा किन मानों में कहा गया है और वो मुनफरिद, लासानी, बिगॉटन, मोनोगेनस, सन ऑफ गॉड कैसे है, तो वो ये मेरा क्लिप जरूर वॉच करे। खुदा उसे बरकत देगा। और अगर ये मेरी बहन आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है तो ये खास वीडियो आपके लिए है। गालिब कमाल ने आपको और गुमराह किया है, लेकिन खुदा का कलाम आपको राह रास्त पे ला सकता है। उसके लिए खुदा आपको बरकत दे। आमीन।